اور پھر 70ویں آیت پڑھیں گے. سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی. دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے. 70ویں آیت. کیا آج گیہوں کاٹنے کا دن نہیں؟ میں خداوند سے عرض کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی. لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے. اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. آمین. سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے. بزرگ آسمانی باپ ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں. ہم مل کر، ہم ایک بدن ایک روح ہو کر شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے ملک میں، ملک پاکستان میں جنگ کو معزول کیا ہے، موقوف کیا ہے. اس کے لیے ہم تیری حضوری میں شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. اس زمین پر تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں امن مانگتے ہیں اور سلامتی مانگتے ہیں، ملکوں کی خیر مانگتے ہیں. اپنے ملک پاکستان کی خیر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، سیری سرفرازی کی دعا کرتے ہیں. شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ تیرے انتظامات کے لیے، تیرے منصوبوں کے لیے تو نے لے کر آگے چلتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان ماؤں کے لیے، اس بڑے عظیم رشتے کے لیے جو اپنے بچوں کی پالنا پرورش تعلیم و تربیت تیرے ہاتھ کے سائے کے نیچے کرتی ہے، محنت مشقت کرتی ہے، اپنی اولاد کو ایک مقام پر ایک جگہ پر دیکھنا مانگتی ہے. خداوند زمین پر جتنی مائیں ہیں ان سبوں کی خیر ہو، ان کی سلامتی ہو. ماؤں کو فضل بخش دے کہ ہمیشہ وہ تیری شریعت، تیرا الہام، تیرا کلام وہ اپنے بچوں کو بتاتی رہیں، سکھاتی رہیں، اسی طرح سے جس طرح سے موسیٰ کی ماں نے بھی فرعون کے محلوں میں رہ کر موسیٰ پر یہ باور کرا دیا کہ تیرا خدا کون سا ہے. ماؤں کی سلامتی ہو، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. غیر قوموں سے متاثر ہوئے. کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی نسل ہے، جو اسحاق و یعقوب کی نسل ہے. یہ نسل جو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، اسے خالق کے کائنات جاننے والے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، وہ ہمیں لے کر چلے، وہ ہمیں لیڈ کرنے والا ہو. ابراہیم کی نسل بھی کچھ اسی طرح سے ہو گئی کہ دیکھی ہوئی چیزوں، دیکھی ہوئی طاقتوں کی طرف مائل ہو گئی. نظر آنے والی چیزوں، نظر آنے والی طاقتوں، نظر آنے والے گھوڑوں اور رتھوں
नजर आने वाले तीरों और तलवारों और बालों और असला खानों, तो नजर आने वाली ताकतों को मांगने लगे। और खुदा ने कहा, अच्छा, इन्हें नजर आने वाले ताकतें पसंद हैं, इन्होंने ये चुन ली है, मैं इनका अनदेखा खुदा, मैं अनदेखा इनका बादशाह जो कि कादर मुतलिक हूं, और मेरे असला खाना को कौन जान सकता है। सो बादशाह ने कहा, अच्छा चलो ये वाली ताकतें भी आजमा ले। तो उसने क्या किया, उसने उन्हें एक बादशाह मुहैया किया। और शमूएल कहता है, देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया, तुमने चुन लिया जिसके लिए तुमने दरखास्त की थी। तो बादशाह किन्होंने चुना? लोगों ने अपना बादशाह चुन लिया। सुनिएगा, दूर वाले भी सुनिएगा, करीब वाले भी सुनिएगा, जब हम अपनी जिंदगियों में खुदा बादशाह, जब हम बादशाहों के बादशाह को छोड़कर अपनी मर्जी से बादशाह चुनते हैं तो क्या होता है? तारीख में क्या हुआ है, क्या हो रहा है? तो चुना किन्होंने? बादशाह चुना किन्होंने? लोगों ने चुना। किन्होंने चुना? जरा सारे बोले, किन्होंने चुना? लोगों ने चुना। आज भी बादशाह चुने जाते हैं, या हम कहें कि हुक्मरान चुने जाते हैं कि ये हुक्मरानी करें, तो कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। तो शमूएल ने कहा, ठीक है, तुमने चुन लिया, तुम लोगों ने अपने खुदा को, तुमने अपने अल्लाह को तुमने पीछे कर दिया, तुमने अपने खुदा को, तुमने अपने अल्लाह को अपना बादशाह नहीं माना। तुमने कहा नहीं, हमें तो चाहिए वो नजर आने वाला, वो कॉन्वॉय चले, बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल हो, बड़े बड़े प्रोटोकॉल हो, आगे पीछे सायरन बज रहे हो, हमें तो ऐसा बादशाह चाहिए। दूसरे लफ्जों में लोगों ने क्या किया? कादर मुतलिक आओ माइटी बादशाह को पीछे करके उन्होंने कहा कि हमें इंसानी बादशाह चाहिए, लो चलो। और तारीख इस चीज के गवाह है, उस वक्त से लेकर बादशाही निजाम, हुक्मरानी का निजाम किस तरह से वो चलता चला आ रहा। और तारीख में बड़े बड़े अच्छे बादशाह हुए, बड़े नेक बादशाह हुए, बड़े परहेजगार बादशाह भी हुए, अपनी कौमों को, अपने लोगों को लेकर चलने वाले। और बड़े बड़े बदकार बादशाह भी हुए, बड़े बड़े करप्ट हुक्मरान भी आए, जिन्होंने खुदा की जो रियाया थी, जो खुदा की मखलूक थी, उन पर बड़े बड़े जुल्म और सितम उठाए, कत्ल गारत। और जब हम तारीखी अदवार में चले जाते हैं तो तारीखी अदवार में हम दौर का शुरू देख लेते हैं और दौर के आखिर तक हमारी नजर जाती है।
हम बाबल से शुरू कर लेते हैं जो सर है, और हम उस मूर्ति की तरफ नजर दौड़ाते हैं जो दानियल की मूर्ति है। तो बाबल से शुरू करके मूर्ति के पांव तक आ जाते हैं। तो ये वो बड़ी अजीम ताकतें हैं, बादशाहियां हैं, ये बड़े बड़े वो सूरमा हैं जिनके आज भी तारीख के अंदर नाम है। और ये निशानात हमें आज भी ये बताते हैं कि ये कैसे बादशाह थे, इन्होंने किस तरह से हुक्मरानी की, इन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए और कौन कौन से बुरे काम किए। सो इन्होंने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, सॉरी, अच्छे काम किए या इन्होंने बुरे काम किए हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी हुक्मरानियां कहां चली गई? ये बाबल की हुक्मरानी कहां चली गई? ये मादी फारसियों की हुक्मरानी कहां चली गई? ये यूनानियों की कहां हुक्मरानी चली गई? रोमियों की हुक्मरानी कहां चली गई? अदवार के अंदर उनके खंडरात जो है वो नजर आते हैं। किन्होंने ये बादशाह चुने थे? और ये बादशाही या हुक्मरानी का निजाम जो था वो ये मुख्तलिफ शक्लें बदलता चला गया, और इन्होंने अपने निजाम जिंदगी, निजाम हुक्मरानी को चलाने के लिए बहुत सारे मेथड्स जो है वो अपनाए। किसी ने कहा बादशाही बड़ी अच्छी है, हम बादशाही निजाम लेके चलेंगे। किसी ने कहा नहीं, पार्लियामेंट का निजाम जो है वो बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, हम डेमोक्रेसी को लेके चलेंगे। किसी ने कहा सदारती निजाम जो है वो बहुत अच्छा है, हम वो लेकर चलेंगे। सो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ निजाम में हुक्मरानी आजमाए गए, चलाए गए, चल रहे हैं, और ये चलते रहेंगे। मांगा था ना उन्होंने, इसी इंसान ने मांगा था ना हमें हुक्मरान। क्यों बदलते रहते हैं? क्यों कहते हैं यहां डेमोक्रेसी होनी चाहिए? क्यों कहते हैं यहां डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, यहां पर जो है वो बादशाही चलेगी? नहीं, यहां पर ना डेमोक्रेसी चलेगी और ना यहां पर किंगडम चलेगी, यहां पर तो डिक्टेटरशिप चलेगी। क्यों क्यों ये जगह बदलती क्यों है? दुनिया के अंदर, जमानों के अंदर क्यों बदलती है? इसलिए चीजें बदली जाती हैं जब चीजें खराब हो जाती हैं। एक निजाम खराब होता है तो दूसरा आजमाया जाता है, दूसरा खराब होता है तो तीसरा आजमाया जाता है, चौथा आजमाया जाता है। निजाम मांगा किसने था? बादशाही मांगी किसने थी? हुक्मरान मांगे किसने थे? कहा मैं तुम्हारा हुक्मरान नहीं था, मेरे हुक्मों, मेरे कवानीन, मेरे लॉ जो मैंने तुम्हें एक दस्तावेज दे दी है, मैंने तुम्हें शरीयत की सूरत में, मैंने तुम्हें अलहाम की सूरत में दे दी है। तो तुम मेरे अहकाम मांगते जो मेरे तख्त से सादर होते हैं, उन हुक्मों को मानते हैं, उसको अपनी जमात में, अपने लोगों में, अपने बुजुर्गों में, अपने बड़ों में मेरे अहकाम को जो मैंने तुम्हें दिए हुए थे उनको याद करते और उसके मुताबिक ये जो जिंदगी का एक सफर है उसको जारी रखते। उन्होंने कहा नहीं, हमें तेरे हुक्म नहीं चाहिए, हमें शरीयत नहीं चाहिए, हमें तो इंसानी शरीयत चाहिए।
फिर इंसानों ने, इंसानी बादशाहों ने और इंसानी हुक्मरानों ने, इंसानी डिक्टेटरशिप ने, इंसानी माइंड ने, इंसानी फलसफे ने, इंसानी तरीकेकार ने कामयाबी हासिल की। क्या कामयाबी मिली है? कामयाबी तो कोई नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली है। हुआ कुछ यूं है, जमीन पर, मुल्कों के अंदर, कौमों के अंदर कामयाबी नहीं मिली, मसाइल बढ़ गए हैं। क्या कहा मैंने? मसाइल बढ़ गए हैं, मसाइल कम नहीं हुए, जंगें बढ़ गई हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं, दुख तकलीफ बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, निज़ाम जिंदगी एक निजाम के ताबिया चलने की बजाय एक अबतरी का शिकार हो चुकी है। वजह क्या थी? एक फितरत थी, इंसानी फितरत, नजर आने वाली, वो नजर आने वाली चीजों की तरफ जो है वो माइल होता है, नजर आने वाली ताकतों की तरफ जो है वो जाता है। उन्होंने कहा हमें भी बादशाह चाहिए, रोबदार बादशाह, कद्दावर बादशाह हो, उसका जहाज ऐसा होना चाहिए। आजकल आपने बड़े जहाजों जूजू का सुना होगा, तो क्या वजह है? और सैमुअल कहने लगा, सैमुअल ने लोगों को कहा तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने शरारत की है, तुमने गुनाह किया है कि तुमने अपने लिए बादशाह मांगा है, तुमने अपने लिए बादशाह मांगा है, तुमने कितनी बड़ी गलती। और हमें पता है, अब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को खोलना, कि इन हुक्मरानों ने अवाम का जीना दो कर दिया, उनकी रोटी, उनके नवाले छीन लिए, उन्होंने अपने अपने महल, अपनी अपनी तमीरात, कह दिया गया था कि अब तुमने जो बादशाह मांगे ना, उस बादशाह ने क्या करना है? अपने रथों के आगे तुम्हारे बेटों को भगाना है, उसके रथों के आगे आगे तुम्हारे बेटे भागेंगे। और आज आप देख लें, मुझे तो उस तरह की गाड़ियों के नाम नहीं आते, बाकी मैं सही कह रहा हूं कि वो जब जिसमें को प्रेसिडेंट बैठा होता है और वो जब एक प्रोटोकॉल में जा रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि उसके साथ साथ जो है वो गार्ड, जिन्हें गार्ड का नाम दे दिया गया है, वो पैदल भाग रहे होते हैं, साथ साथ भाग रहे। किसी मोहल्ले में आ जाए ना बादशाह, तो बहुत बड़ी बात है, तो कोई बादशाहों का कोई छोटा वजीर आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनके आगे 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 भागेंगे, पीछे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, उतराएंगे। और अगर कोई उनकी गाड़ी के आगे को बच्चा आ गया तो उन्होंने नहीं ब्रेक लगानी, प्रोटोकॉल ने कुचलना ही कुचलना, उसने टक्कर मारनी मारनी। तो कह दिया गया था कि इन्होंने, इन बादशाहों ने जो तुमने मांगे हैं ना, इन्होंने ये करना है। तो हम ये देखते हैं जी, सारी तारीख के अंदर जब से बादशाह मांगे गए, क्या कुछ जो है वो हुआ है। तुमने कितनी बड़ी जो है ये गलती की है, और इस जमीन पर सबसे बड़ी इंसानी गलती है ही ये है कि उन्होंने अपने खुदा को छोड़कर किसी और कुव्वत पर भरोसा और तवक्कल किया। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा हुआ है, मलाउन हो वो शख्स, लिखा गया है मलाउन हो जो इंसान के जोरे बाजू पर तवक्कल करता है। किसके बाजू पर? कौमें जोरावर होती है, बादशाह जोरावर नहीं होता। क्या कहा मैंने? कौमें जोरावर होती हैं, बादशाह जोरावर नहीं होता।
कौमें अगर जोर आवर होती हैं तो कौमों के जोर आवरी की बुनियाद क्या होती है? याद रखें कि कौमों की जोर आवरी की जो बुनियाद होती है वो इलाही ईमान होता है। आमीन, हालेलुया। कौमों की जोर आवरी की बुनियाद क्या होती है? इलाही ईमान। आमीन। कौन सा ईमान? वो जो ईमान ऊपर से मिलता है, जो ये जान लेते हैं कि जिंदगी और मौत जो है वो किसी शख्स के इख्तियार में नहीं है, जिंदगी जो है वो उस कादरे मुतलक के इख्तियार में है। आमीन। जिंदगी किसके? तो वो ये जज्बा ईमानी जिस कौम के अंदर होता है, तो ताकतवर कौम होती है, ना कि बादशाह ताकतवर होता है। कौमें जोरावर होनी चाहिए। आमीन। कौन जोरावर होनी चाहिए? और कौमों के जोर की बुनियाद क्या है? सब बोले ईमान है। ईमान जोरावर होता है। ईमान से तुम पहाड़ों को भी हटा देते हो, यही लिखा हुआ है ना। ईमान से ही तलवार लेकर दुश्मन पर धावा करते, ईमान ही से शेरों की मांद में उतरा जाता है। शेर जोरावर नहीं है, मेरा खुदा जोरावर है। आमीन, हालेलुया। ईमान ही से आग में उतरा जाता है, आग जोरावर नहीं है, मेरा खुदा जोरावर है। हालेलुया। तो ये जो बनी इस्राइल ने खुदा मांगकर गलती की, खुदा को छोड़कर बादशाह मांगने की गलती की, तो फिर बादशाहों ने वो सलूक किया और आज तक होता चला आ रहा है। नाकाम हुए सारे के सारे, निशान दिखा रहे हैं, खंडरात दिखा रहे हैं। मुगलिया दौर के खंडरात लोग देखने के लिए जाते हैं। किधर गई मुगलिया सल्तनत? कहां गई बादशाहत? तो हम कहां गया सिकंदर आजम? कहां गया हिटलर? तो ये सारे हुक्मरान जो है वो सारे के सारे हम कहें कि इनके सिर्फ निशान बाकी हैं, और जमीन पर इन्होंने इन सारी ताकतों को याद किया जाता है। चंगेज खां को याद किया जाता है, और बड़े हैं, आपको पता है। इनकी तलवारें खून से रंगी हुई हैं। हुक्मरानों की तलवारें खून के साथ रंगी हुई हैं। खुदा के लोगों, हम जिस कौम के साथ तल्लक रखते हैं, हम जिस ईमान के साथ तल्लक रखते हैं, ए चर्च, ए कलीसिया, ईमानदार, जान तेरा ईमान तुझे क्या कहता है? तेरा ईमान, तेरे ईमान का बानी तुझे क्या कहता है, और वो क्यों कहता है? हम दुआएं मांगते हैं, हमने मांगनी है। हमने अपने हुक्मरानों के लिए भी मांगी, हमने अपने मुल्क के लिए भी मांगी, हमने अपने लीडर्स के लिए मांगनी है, हमने अपने चर्च लीडर्स के लिए मांगनी है, पादरियों के लिए मांगनी है। हमने, कलाम कहता है कि सब दुआएं आदमियों के लिए की जाए। आमीन। हमने सबके लिए दुआ की। तो हमारे ईमान का बानी हमें एक दुआ के लिए, एक मांग के लिए, हम बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। मेरे ईमान का बानी मुझे सबसे पहली दुआ, तुमने सबसे पहले जो मांगना है वो क्या मांगना है?
मेरा खुदावंद यीशु मुझे क्या मांगने के लिए कहता है, वो अपने चर्च को मांगने के लिए क्या कहता है, वो अपनी कलीसिया को मांगने के लिए क्या कहता है, वो खादमों को, वो बेटों को, वो बेटियों को, वो सबसे पहले मांगने के लिए क्या कहता है। कोई बताएगा कि सबसे पहली मांग जो खुदावंद यीशु ने कही वो क्या कहा कि ये मांगना, क्या कहा? सबसे पहली मांग जो मेरा ईमान का बात, जो मुझे तालीम दी गई, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझ लिया है, उसने कहा तुमने ये मांगना है, तेरी बादशाही आए। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली मांग कौन सी? वेरी गुड। सबसे पहले दुआ में हमारी दुआ में सबसे पहली मांग कौन सी? क्या मांगते हैं? जरा सबसे पहले जरा सारे ही सोचो, अपने अपने दिलों में जरा सारे सोचो। मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैसेज वो देख रहा है, सुन रहा है, वो भी जरा सुनते हुए ये सोचे कि मैं क्या मांगता हूं। खुदा यीशु ने भी ये क्यों कहा, क्या जरूरत थी ये कहने की? तेरी बादशाही है, जरूरत क्या थी? क्यों कहा गया कि तेरी बादशाही? ये वहां पर जो खराबी शुरू हो गई थी ना, कि हमें एक बादशाह चाहिए, और उन बादशाहों ने फिर जो जुल्म के दरिया बहाए, जो खून के दरिया बहाए, जो उन्होंने कत्लो गारत की, जो उन्होंने करप्शन की, जो उन्होंने जुल्म और तशद्दुद किए, सारे के सारे नाकाम हुए। फिरौन जैसा एक बादशाह की मम्मी जो है वो पड़ी हुई है, गवाह है इस चीज की, क्या इंसान तो कितना बड़ा हुक्मरान क्यों नहीं है, तो कितना बड़ा बादशाह क्यों नहीं है, तेरी कितनी बड़ी हुक्मरानी क्यों नहीं है। फिरौन की मम्मी इस पर निकाह कर ले, आखिरकार तेरी औकात, तेरी जात सिर्फ और सिर्फ ये है, तो अपनी औकात में, तो अपनी जात में ये हैसियत रखता है। उन कब्रों पर निगाह कर ले, बताएंगी तुझे, वो कब्रें बोलेंगी तुझे, वो मट्टी धूल वो बताएगी कि ऐ बादशाह, ऐ हुक्मरान, तेरी औकात ये है। बादशाह एक ही है, हालेलुया। बादशाह एक ही है जो अजली और अबदी है। आमीन। जो अजली और अबदी है, वो तलवार निकालता नहीं है, वो खून लेने वाला बादशाह नहीं है, वो खून देने वाला बादशाह है। हालेलुया। वो खून लेने वाला बादशाह नहीं, बल्कि खून देने वाला बादशाह है। वो बादशाह जिंदगी लेता नहीं है, वो खुदा बादशाह, वो अल्लाह बादशाह जिंदगी देता है। आमीन। वो खुदा बादशाह, वो अल्लाह बादशाह जिंदगी लेता नहीं, जिंदगी देता है। हमें वो बादशाह चाहिए। यीशु नासरी को पता है कि इंसान को कौन सा बादशाह चाहिए। आमीन। खुदा के बेटे यीशु नासरी को पता है कि एक्चुअल इंसान को, मुल्कों को, जिंदगियों को, कौमों को कौन सा बादशाह चाहिए। जालिम बादशाह नहीं चाहिए, बल्कि रहीम बादशाह चाहिए। हालेलुया। उन्हें रहीम चाहिए, उन्हें वो बादशाह चाहिए जो ये कहने वाला हो, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। हालेलुया। ये बड़ा बादशाह चाहिए। वो बादशाह चाहिए कि मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें जिंदगी देने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि
उसने इस जमीन पर जुल्म और तशद्दुद देख लिया हुआ था और कह दिया था कि मैं तुम्हें बादशाह देता हूं, उसका तख्त जो है वो अब तक बना रहेगा। निशानात बता दिए, देख तेरा बादशाह आता है। ऐ इस्राएल, तेरा बादशाह वो नहीं जो दूसरों का खून बहाता है, तेरा बादशाह तेरे लिए अपना खून बहाता है और गधे के बच्चे पर वो सवार है। तेरा बादशाह वो है। खुदा में यीशु ने कहा, अपने लोगों को कहा, जरूरत थी। क्या कहा मैंने? सारे बोले, क्या कहा? जरूरत थी, जमीन को जरूरत थी। सारे बादशाह, सारे हुक्मरान, निज़ामे हुक्मरानी मेथड्स जो थे वो सारे नाकाम और अभी तक तजर्बात होते चले जा रहे हैं, लेकिन मसाइल खत्म नहीं हो रहे। दुनिया के अंदर मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शरारत की थी, वो शरारत जो है वो जड़ पकड़कर वो फल ला रही है सारी जमीन पर। एक बादशाह आता, गधे के बच्चे पर वो सवार, वो आकर ये कहता है दुआ करना, अब तुम इस तरह से दुआ करना, अपने बाप से, खुदा बाप से ये मांगना, कहना तेरी बादशाही आए। आमीन, आमीन। तेरी बादशाही आए, यानी कि सारी बादशाहियां जाती रहें, क्योंकि वो सारी की सारी फेल हो गई हैं, वो सारी नाकाम हो गई हैं। तेरी बादशाही आए, तेरी वो बादशाही जो आज तक वो लश्करों को खिला रहा है, वो चरिंद परिंद कीड़े मकोड़ों हर चीज, वो जिसने तेरे लिए आसमान ताना है, जिसने तेरे लिए सूरज मुकर्रर किया है, जिसने तेरे लिए रात के लिए चांद की ड्यूटी लगा दी हुई है, और जिसने तेरे लिए नदी नाले चश्मे जो है वो जारी किए हुए हैं, उसकी बादशाही आए। हालेलुया। यहां तो 6 महीने बाद पुल टूटना शुरू हो जाते हैं। यहां तो 6 महीने साल बाद हुक्मरानों के बनाए हुए सड़कें वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है। आओ जरा उसकी सनद को देखो, उसने इतनी देर से वो चांद सितारे लगाए हुए हैं और वहां लोड शेडिंग को नहीं होती। आमीन। और कभी भी उसने ये नहीं कहा कौमों को, मुल्कों को कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी शमसी तवानाई दे रहे हो, तुमने मुझे बिल देना है उसका। उसने ये कभी नहीं ये कहा। आमीन, हालेलुया। तो खुदा में यीशु ने ये कहा, ए कौमों जान लो, ए ममलकतों जान लो, ए हुक्मरानों जान लो, हम सबों को एक ही बादशाही की जरूरत है। और वो कौन सी बादशाही है? वो बादशाही आसमान की बादशाही। जिन मुल्कों में आसमान की बादशाही आएगी, जिन मुल्कों में ऊपर वाले को बादशाह माना जाएगा। आमीन। जिस मुल्क में, जिस कौम में ऊपर वाले को बादशाह माना जाएगा, उस बादशाह के सबब से क्या हो जाएगा? वो कौम और वो मुल्क जो है वो ताकतवर हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, वो दलेर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारे दरमियान बादशाह कौन सा है। हालेलुया। हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, मेरे खानदान के अंदर, मेरे काम कारोबार के अंदर, मेरी राहों के अंदर बादशाह कौन सा है। और उस बादशाह के सबब से वो तवानाई मिलती है, वो दिलेरी मिलती है कि दाऊद कहता है, मैं तेरे सबब से दीवार को फलांग चाहता हूं। हालेलुया। तू मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। हमें जरूरत है ये दुआ करने की। आमीन। हमें जरूरत है ये दुआ करने की कि ऊपर वाले की बादशाही, ऊपर वाले के कानून जो उसने इल्हाम की सूरत में हमें दे दिए हुए हैं, ये इल्हाम की सूरत में कवानीन हमारी जिंदगी में आ जाएं, हमारे मुल्क के अंदर ये इल्हामी कवानीन आ जाएं, ताकि हम इस
इल्हामी कवानीन के मुताबिक अपने निज़ाम हुक्मरानी को चलाने वाले हों, हम अपने निज़ाम जिंदगी को चलाने वाले हों। इंसानी अहकाम, इंसानी मुसव्वदात वो नाकाम और फेल हो सकते हैं, लेकिन ये कवानीन और ये मुसव्वदात जो हैं ये फेल होने वाले नहीं हैं। आए हम खड़े हो जाएं और हम यही दुआ करें, तेरी बादशाही आए, तू हमारी जिंदगियों का बादशाह हो, तू हमारे मुल्क का बादशाह हो। और खुदा के लोगों, जुबानें खुल जाएं, मांगना शुरू हो जाएं, कहना शुरू करें, हमारे मुल्क का बादशाह ऊपर वाला हो, हमारे मुल्क का हुक्मरान ऊपर वाला हो। मेरे घर, मेरे सूबे, मेरी गली मोहल्ले, ऊपर वाले के कवानीन, ऊपर वाले की दस्तावेजात, ऊपर वाले का कलाम, उसके अहकाम, मेरे मुल्क के अंदर उसके अहकाम आ जाए, तेरी बादशाही आ जाए। हाँ, आओ हम सब मुंह खोलें और अपने मांगना शुरू करें।